that pressure increases by 0.4%. मस्त समय आइए. When heated by 1 डिग्री सेल्सियस. तो आपको बोला है therefore initial temperature is option 250 डिग्री सेल्सियस, 250 केल्विन, 2500 Kelvin, and the last is 25 degree Celsius. चलो complete करो. This is homework. After this, we'll start with Avogadro's law. Now I'm shifting this page. So we'll write here Avogadro's law. This was given by Avogadro himself. और इसका स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट सेम वही जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा. अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases contains equal number of molecules, that is moles. तो वो सेम ही है. यहाँ इस एवोगैड्रो में कोई डिफरेंस नहीं. हाँ, गैलुसेट में डिफरेंस है. तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट at constant pressure and temperature, volume of gas is directly proportional to number of moles. अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम और मोल्स एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. What is the explanation for this? The explanation says that volume is directly proportional to N when P and T both are constant. Directly proportional के साइन को रिमूव कर दीजिए. So you will get V is equal to K into N. And then this pressure and temperature both are constant. दोनों ही वैल्यू जो है वह कांस्टेंट होता है. So you will get here V is equal to K into N. P and T are constant. अच्छा, अगर आप डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट मोल्स पर इक्वेशन लिखते हैं
तो क्या आता सर, तो वो भी लिख लेते हैं. इफ वी हैव डिफरेंट वॉल्यूम एंड मोल्स ऑफ गैस, तो इक्वेशन क्या आएगा? जरा लिखिए ना, जगह खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ. प्लीज नोट डाउन. Now I am shifting this page. अब हमारा इक्वेशन होगा V1 upon N1 that is equal to V2 upon N2. This is also equal to constant. और यह जब इक्वेशन वैलिड होगा, at that time we have kept pressure and temperature as constant. तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट रखा हुआ. चलो नेक्स्ट is the significance of Avogadro's law. What is the significance? या तो आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं. जिसको अब हम मोल्स को मास और मोलार मास के टर्म में लिखेंगे और इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में डिराइव करेंगे. जैसे हमारा इक्वेशन है, सिंस V is equal to K into N, where N is number of moles which is equal to mass upon molar mass. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम क्या करेंगे, अभी मोलार मास को लेफ्ट में और वॉल्यूम को राइट में लेके जाते हैं. तो आपको इक्वेशन मिलेगा मोलार मास इज इक्वल टू K इंटू W अपॉन V. चलो जरा यहां तक लिखो. यस ऋषि, पहले जरा यहां तक लिख लो ना, उसके बाद मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ. फर्स्ट यू प्लीज नोट डाउन टिल हियर. ऋषि पहले यहां लिख लो बेटा. फर्स्ट यू प्लीज नोट डाउन.
Okay. So complete this, Rishi. Take a screenshot. Rishi. ठीक है। ओके, बस ना यही चाहिए था ना? यस सर। ठीक है. So let's continue with the derivation part. Mass upon volume, we call it as density. So molar mass is equal to K into D. And in this equation, we say that pressure and temperature both are constant. तो इससे क्या पता चला? मोलार मास जो है वो डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So we say that molar mass is directly proportional to density. अगर हम डिफरेंट मोलार मास और डिफरेंट डेंसिटी लेंगे तो क्या होगा? So we say that at different molar mass and density of gas, तो आपका इक्वेशन क्या होगा? So our equation can be written as m upon d is constant. So यहाँ आप लिखोगे मोलार मास 1 upon d1 is equal to molar mass 2 upon d2, and this is equal to constant. And during this equation, we say that pressure and temperature both are kept constant. तो ये होता है एवोगैड्रो लॉ का सिग्निफिकेंस. That means it gives a relationship between molar mass and density. मोलार मास और डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वह यह एवोगैड्रो ने बताया. अब इसके ऊपर से हम एक क्वेश्चन लेते हैं. पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन मैं आगे लिख पाऊंगा. Now I'm shifting this page. आपको दो फ्लास्क दिए थे. This is your flask 1 and this is your flask 2. Both are kept at STP. पहले फ्लास्क में O2 रखा है and in the second flask it is SO. Here the volume is 1 liter. Here the volume is 2 liter. यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है O2 के वो N है और SO2 के मॉलिक्यूल्स मैं कहाँ से ढूंढूं? They will told us find out the molecules of SO2. Options है N/2, N, then 2N, and then 4N.
सॉल्यूशन एफएटी का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है अवोगाड्रो लॉ लगेगा। तो यहाँ आप लिखोगे V1/V2 that is equal to N1/N2। वॉल्यूम है आपका 1 लीटर, ये है 2 लीटर। और मॉलिक्यूल्स N1 का N और इसका मॉलिक्यूल्स आपको ढूंढना है। तो यहाँ से आपको N2 मिल जाएगा। N2 will be 2 times N। Which option it is? Option number 3। इस तरह से ये सम हम सॉल्व करते हैं। जरा सभी स्टूडेंट्स ये सम और सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन एज होमवर्क देता हूँ, प्लीज नोट डाउन। Hello, now I am shifting this page and giving you a homework question. What is that homework question? Density of A is 1.5 times density of B. Molecular weight of A is equal to M. तो आपको पूछा है molecular weight of B is, options है 1.5 times M, M upon 1.5, 3 times M, and fourth is M by 3. This is your homework question. Easy है, हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे, वो है आइडियल गैस इक्वेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कई बार, PV इज इक्वल टू NR। अब आज के लेक्चर में हम उसका डेरिवेशन करेंगे कि वो कैसे आया। नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हमारे पास बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है। व्हाट इज बॉयल्स लॉ का इक्वेशन? हम कहते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट then we have Charles law,
चार्ल्स लॉ का इक्वेशन क्या है सर? V upon T is constant. Then we have Gay-Lussac's law. जिसका इक्वेशन आप लिखोगे P upon T is constant. Then we have Avogadro's law. जिसका इक्वेशन आप लिखोगे V upon N is equal to constant. ये सबको हम कंबाइन करेंगे, then we'll get ideal gas equation. लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ता हूँ. Yes, Swastika, first you note down till here. Yes. Take a screenshot, Swastika. Done, sir. Okay. अब हम इन सबको कंबाइन कर. Now we'll write here. Combining all laws. आप यहां लिखेंगे therefore PV upon NT that is equal to constant, जिसको हम लोग कहेंगे R, and this R is universal gas constant. R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसमें अभी इक्वेशन को मैं थोड़ा प्रॉपर वे से लिखूं तो आपका इक्वेशन होगा PV इज इक्वल टू NRT, या तो इसी को आप लिखोगे PV इज इक्वल टू WRT अपॉन MW, या तो इसी को आप लिखोगे PV इज इक्वल, या एक साथ में लिख देना, या P के टर्म में लिखता हूं, चलो ना, वॉल्यूम को राइट में ले लो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा. So this will be written as DRT upon MW. तो यह आपके याद रखने वाले फॉर्मूलाज जो सम सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेंगे. अभी अगर आपको सम में नहीं समझ रहा है कौन सा लॉ अप्लाई करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जो है आइडियल गैस का इक्वेशन अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हो. जैसे PV इज इक्वल टू NRT, दिस इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो अभी एक क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ, देखो ये वाला ऊपर वाला ही लिख के बताता हूँ. इसमें वॉल्यूम दिया था और मोल्स दिए हुए, तो आप ये V1 V2 छोड़ दो, नहीं याद है कोई बात नहीं, PV इज इक्वल टू NRT ले लो. तो वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशनशिप ये देख लो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो V1 अपॉन V2 इज N1 अपॉन N. तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो.
तो अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है कि कौन सा लॉ अप्लाई करना है तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आइडियल गैस का इक्वेशन आप अप्लाई करके कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इज कंबाइंड गैस लॉ। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो है कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। इसका डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पर शुरू करता हूं। पहले जरा सभी स्टूडेंट्स यहां तक लिख लीजिए। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो थर्ड वाला फॉर्मूला है सर, डी आर टी अपॉन मोलार मास, सर वहाँ पे सर डी का रिलेशन सर कैसे आया वहाँ पे? ये वॉल्यूम और मास मैंने सब्स्टिट्यूट किया है डेंसिटी। सर ओके, तो पी है सर, तो समझा समझा। ऋषिया ज्यादा प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? चलो लिखो फटाफट। हो गया? Yes, sir. अब ये कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन क्या है? देखो हमारे पास मेन इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर आप केस 1 के लिए लिखो तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1 मिलेगा। एंड केस 2 के लिए लिखोगे so you will get P2 V2 is equal to N2 RT2। अब इसको डिवाइड कर दो, R कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, so you will get here P1 V1, this is divided by P2 V2 which is equal to N1 T1 divided by N2 T। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं combined gas equation, so we call this equation as combined gas equation। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे which is effective molar mass। So we'll discuss here effective molar mass, which is written as EMW। चलो जरा लिखो, नेक्स्ट पेज पर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ व्हाट इज इफेक्टिव मोलार मास। अभी ये चैप्टर के एमसीक्यूज आपने देखे रहेंगे मॉड्यूल में तो बहुत कम है, एक्सरसाइज 1 2 3 मिला, तो उतने क्वेश्चन से हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा, एक्सरसाइज 1 2 और शायद 3 भी है, तो वह आपको सॉल्व करना रहेगा। इस चैप्टर का मॉड्यूल तो करना ही है, रेस भी करना ही है, साथ में जो मैं अभी शेयर करूंगा आज के लेक्चर के बाद कर देता हूँ शेयर, वो भी आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज इफेक्टिव मोलार मास? अभी हमारे पास दो गैस है एक वेसल में, ए और बी, तो उन दोनों का मिला के जो मोलार मास होगा वी कॉल इट एज इफेक्टिव मोलार।
दोनों का मास तो पता है हमें, बट दोनों का मोलार मास जो निकालेंगे उसी को इफेक्टिव मोलार मास कहते हैं। चलो मैं पेज चेंज करके उसे एक्सप्लेन कर। व्हाट इज इफेक्टिव मोलार मास? सपोज दैट दिस इज अ वेसल, थोड़ा छोटा बना देता हूं, जिसमें हमने ए गैस और बी गैस को रखा हुआ है। Here we have kept A in a gaseous state plus B also in a gaseous state. अब हमें इस वेसल का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास सब कुछ दिया हुआ है और हमें बोला है कि इसका आप मोल फ्रैक्शन ढूंढिए या तो फिर मोल्स ढूंढिए कि ए के कितने मोल्स है और बी के कितने मोल्स। इसके साथ साथ वो आपको इफेक्टिव मोलार मास भी देंगे। दे विल गिव यू इफेक्टिव मोलार मास ऑल्सो। या तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा के मोलार मास ढूंढ सकते हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन। सो अब इसको सॉल्व कैसे करो? हम कहते हैं लेट टोटल मोल्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 मोल। दोनों का मिला के 1 मोल है, उस ऐसा हम अज्यूम करते हैं, जिसमें से जो ए है उसके मोल्स एक्स है। ऐसा मेरा मानना है कि ए का मोल्स एक्स, तो जो बी है उसका मोल कितना होगा? इट विल बी 1 माइनस एक्स। आप फॉर्मूला यूज करोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, that is WRT upon MW। या जो MW है ना, this will give you effective molar mass। यह आपको effective molar mass देगा। अब जरा लिखो नेक्स्ट पेज पर, मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूँ। आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। सो इससे आपको इफेक्टिव मोलार मास मिल गया। अब आपके पास फॉर्मूला है, टोटल मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल मास अपॉन टोटल मोलार मास, which we call it as effective molar mass। तो यहां से आप इफेक्टिव मोलार मास कैसे निकालोगे? सो इफेक्टिव मोलार मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल। मास तो आपको दिया हुआ था, बट अभी आपको मोल फ्रैक्शन या मोल के टर्म में ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल मास को मैं मोल्स के फॉर्मूला में लिखूंगा। जैसे भी टोटल मास कैसे निकालो? सो दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ए के मोल से एक्स, बी के मोल से 1 माइनस एक्स,
करेक्ट. सो हम यहां लिखेंगे टोटल मास विल बी इक्वल टू x into molar mass of A plus 1 minus x into molar mass of B. और टोटल मोल्स आपने कितने लिए हुए, हाउ मेनी मोल्स यू हैव टेकन, विच इज 1. यह फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इफेक्टिव मोलार मास पता है, ए और बी का मोलार मास पता रहेगा. सो यू विल बी एबल टू गेट मोल फ्रैक्शन. दैट इज, या तो आपको मोल्स मिल जाएगा या तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. तो इस तरह से यह फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और सम सॉल्व करेंगे. इस फॉर्मूला का जब मैं सम लूंगा तो आपको ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलो लिखो जरा यहां तक सभी स्टूडेंट. Yes. So just about this, you have written n or x is equal to question mark. In that, what is x? Mole fraction. Okay, sir. चलो अभी सबका यूनिट डिस्कशन कर लेते हैं और इंटर रिलेशनशिप सबका डिस्कशन कर लेते हैं. सो लेट्स डिस्कस हियर द यूनिट्स और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं. द फर्स्ट यूनिट इज ऑफ प्रेशर. प्रेशर का सिंबल इज P. फटाफट लिखेंगे, आप लोग भी साथ में ही लिखते रहिए. ये ऑलरेडी हम मोल कॉन्सेप्ट में लिख चुके हैं. सो 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal or Newton per meter square, which is equal to 101.3 kilopascal. That is also equal to 1.013 bar. That is also equal to 76 centimeter of mercury. That is also equal to 760 millimeter of mercury. That is also equal to 762. चलो लिखो. Then we'll discuss for volume. आर्यन लेक्चर के बाद रुक जाना, I will help you out. Now I'm shifting this page. The second term is volume. Volume का symbol is V. The unit 1 liter is 1 dm cube. 10 raised to 3 ml. 10 raised to 3 centimeter cube. 10 raised to 3 cubic centimeter. 10 raised to minus 3 meter cube.
ये आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म इज मास, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर में। मास का सिंबल इज W एंड मोलार मास उसका सिंबल इज MW। दोनों का यूनिट्स और इंटर कन्वर्जन। 1 kg is 10⁻³ gram, which is equal to 10⁻⁶ milligram. Then temperature. The next term is temperature, जिसमें ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में भी लिखा। अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है T डिग्री को, so it is T degree plus 273. So this will become Kelvin. डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहीट का रिलेशनशिप मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। Now I am shifting this page. So temperature in degree Celsius. This is divided by 100 is equal to temperature in Kelvin minus 273 divided by 100. That is equal to temperature in degree Fahrenheit minus 32 divided by 180. Next. जिसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। The next term is universal gas constant. The symbol is R. इसके कई सारे वैल्यूज और शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको। The first value is R का 8.314 joules per Kelvin per mole, जिसको आप शॉर्टकट में लिखोगे 100/12 joules. This is also equal to 8.314 into 10⁻³ kilojoules per Kelvin per mole, which you will write it as 1/120. तो अगर आपको किलोजूल में चाहिए तो 1/120 लिखो। Then 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole, and this is written as 1/12. This is also equal to 0.083 liter bar per Kelvin per mole. This is also written as 1/12.
चलो जरा लिखो यहां तक फटाफट। So, यस sir, in this you mean that instead of writing 8.314 etc., we can add 100 upon 12, like that meant. हाँ, so what is your question? I was confirming whether that was what you meant. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the second value is 2 calories per Kelvin per mole. और अगर किलो कैलोरी में चाहिए then it is 2 into 10⁻³ किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अच्छा, अभी इसके बाद अगर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आर का कौन सा वैल्यू आप लेंगे वो डिपेंड होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर। फिर से एक बार कहते हैं, इफ यू आर यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फुल फॉर्मूला, तो आप आर का कौन सा वैल्यू लेंगे वो डिपेंड होता है पी और वी के यूनिट्स के ऊपर। जैसे कुछ समझा नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर और बार, वॉल्यूम लीटर में है या तो डीएम क्यूब में है, देन योर आर शुड बी 1/12। अभी नहीं होगा तो भी लाना पड़ेगा, वो ऊपर जो कन्वर्जन लिखे हैं ना उसको यूज करके आपको कन्वर्ट करना है। जैसे समझिए अभी आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में है लेकिन वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो और फिर आपको आर का वैल्यू 1/12 लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका प्रेशर पास्कल में है या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एक मिनट में, हेलो, हाँ yeah, your pressure is in pascal और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में है, देन योर आर शुड बी 100/12। आप जो आर का वैल्यू है वो 100/12। तो ये सब वैल्यू आपको पूरा लर्न करना है। हाँ, दिस होल डेटा यू हैव टू लर्न। चलो लिखो, एक और कन्वर्जन में नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ, प्लीज नोट डाउन। चलो आगे बढ़ू। Shall we move?
नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास है 1 लीटर एटमॉस्फेयर, तो उसका वैल्यू आता है 1.013 जूल्स, जिसको आप सम सॉल्व करने के लिए 100 लेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 24.22 कैलोरीज, जिसको आप सम सॉल्व करने के लिए 25 ले लेंगे। पूरा पूरा लर्न करना है भाई सब कुछ। ये जहां यूनिट हेडिंग शुरू हुआ ना, वहां से लेके लास्ट तक जो लिख रहा हूं सब, ठीक है। देन 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर is equal to 1 Pascal meter cube, that is also equal to 1 kilogram meter square upon second, 1 gram per centimeter cube, that is equal to 10 raised to 3 kilogram per meter cube। इतना सब आपको लर्न करना है। चलो कंप्लीट करो। अब हम नेक्स्ट पेज पे सम्स शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। सर यस, सर जो फर्स्ट वाला है सर, जो लीटर एटमॉस्फेयर है सर, वो आपने 1.013 जूल्स लिया है सर, बट उसको राउंड। हाँ मैंने गलत लिखा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलती की है लिखने में। अच्छा हुआ बोला तुमने, आई एम सॉरी। आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज जरा इसको चेंज कर देना। इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। चलो अभी एक सम लेते, मस्त सम है वो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ बबल ऑफ एयर is underwater at 15 degrees Celsius and 1.5 bar. Then आगे बोला है, if bubble rises to surface, where your temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 1 bar. Therefore, volume is, ऑप्शन दिया हुआ है, volume increases by 2.5 times. Second option, volume increases by 1.5 times. Third option, volume increases by 1.1 times. Fourth option, volume increases by
0.7 टाइम। चलो लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जो सैटरडे वाला लेक्चर है और उसके बाद एक डाउट लेक्चर है, वो डाउट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा एंड इट वॉन्ट बी 1 आवर का डाउट लेक्चर, इट विल बी 2 आवर्स, मतलब 1 to 3। तो सैटरडे आपका मॉर्निंग में लेक्चर होगा, फिर मेरा लेक्चर होगा नॉर्मल रेगुलर, और फिर और एक मैं रेगुलर लेक्चर लूंगा, दैट इज ऑफ 2 आवर्स। और वो 2 आवर्स के लेक्चर में जो 1 to 3 वाला रहेगा, उसमें लास्ट के 15 मिनट्स में मैं डाउट डिस्कशन करूँ। तो ऑन सैटरडे यू हैव रेगुलर लेक्चर, नॉट डाउट लेक्चर। कौन सा पार्ट चाहिए आदित्य? एक्सक्यूज मी सर, ये सर, क्वेश्चन के पहले का सर थोड़ा सा ऊपर वाला वो 2 लिखना बाकी रह गया था। हाँ लिखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। डन सर। ओके, चलो आगे बढ़ू। क्वेश्चन में क्या बोला है? अब यहां आपके पास एक बबल है, एयर का बबल। दिस इज योर एयर बबल। जब बहुत ही डाउन लेयर में था, लोअर लेयर में था, दिस एयर बबल वाज प्रेजेंट इन लोअर लेयर, तो उसका प्रेशर था 1.5 बार एंड उसका टेम्परेचर मिला 15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होगा 288, चेक कर लेना। यहाँ सब जगह वाटर है। फिर क्या हो रहा है, यह जो एयर का बबल है ना, वो ऊपर गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। पहले वो नीचे प्रेजेंट था, नाउ इट गोज अप। तो जब ये एयर का बबल ऊपर गया, तो बाय डिफॉल्ट अपर लेयर में प्रेशर चेंज होता है। यहां पर प्रेशर मिला इन द अपर लेयर, द प्रेशर हैज बिकम 1 बार और टेम्परेचर भी बढ़ गया 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होगा 298। समझो इसका वॉल्यूम यहाँ V1 है, तो आपको बोला है V2 कितना होगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। जब वो एयर का बबल नीचे से ऊपर गया, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, कितना टाइम चेंज होगा, वो हमें ढूंढना है। तो नीचे आपके पास जो एयर बबल है, उसमें जितना भी गैस रहेगा, बाय डिफॉल्ट जब वो ऊपर जाएगा, तो वो गैस का मॉलिक्यूल्स और मोल्स सेम होगा। एवरीवन सोच के बताइए, जो एयर बबल नीचे है, वो जब ऊपर चला जाएगा, तो उस एयर बबल का मॉलिक्यूल्स और मोल्स सेम होगा। तो Yes. नंबर ऑफ मोल्स Yes, सेम sir. है। आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। तो केस 1 आप डाउन वाला ले लीजिए, सो आप लिखेंगे P1V1 इज इक्वल टू nRT1, और केस 2 आप अप वाला ले लीजिए, सो इट इज P2V2 nRT2। इसको डिवाइड कर दो। ऑन डिवीजन we can see that NR will get cancelled। लिखो, आगे का हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करते हैं। ज़ारा करेक्ट,
Madhusudan, correct. Bhumi cross why am I correct? चलो मैं चेंज करता हूँ. Gargi correct. Very good everyone. So यहाँ मिला. Rhythm correct. P1 upon P2 is equal to P1 upon P2. तो P1 आना है 1.5. B1 को B ले लीजिए, आप B1 रखिए. P2 आपका 1 है और ये B2 हो गया. B1 आपका 288 है और P2 आपका 298 है. तो by default 288 और 998 वो 1 से कैंसिल होगा approximately. So अगर आप यहाँ B कंटेंट में लिखते हैं, so आपका B क्या है 1.5 टाइम B1. तो इसका मीनिंग ये है जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा 1.5 टाइम्स. That means bubble will be large. बबल बड़ा हो जाएगा. Which option it is? Option number 2. Hence my answer is the second option. अरे आसान था. बहुत good question. चलो मैं आपको होमवर्क दूँ इसके ऊपर. Yes, sir. एक दो क्वेश्चन अपना होमवर्क देता हूँ. Now I think in the page. Homework question. Question दिया हुआ. 5 ग्राम ऑफ इथेन. आपको फॉर्मूला आना चाहिए. Is confined in a bulb of 1 liter. Bulb is so weak that it will burst if pressure exceeds to 10 atmosphere. At what temperature? Pressure will reach
bursting value. ऑप्शन है 157 डिग्री सेल्सियस, 257 डिग्री सेल्सियस, 447 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस। लिखो। एक और होमवर्क देता हूं। थोड़ा सा ट्रिकी समय सेकंड पर। I am shifting this page. The question is, at 740 mm So this is of also homework, right? Hg pressure in a closed vessel, हमने बोला है number of molecules of O2 and H2 are same. Then if O2 is removed from system, then pressure becomes, अगर O2 रिमूव कर दिया तो प्रेशर कितना? 740, 740 upon 2, 740 upon 9, and 2 into 740. चलो करो complete. Yes, Krishnan, you had some doubt. Recording No, sir, stopped. nothing. What? No, sir, nothing. चलो तो आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। ऊपर भी शायद एक दिया, 2 दिया ऊपर, और अभी ये 2। और मैं अभी एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का इस चैप्टर का, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे और डीडी ग्रुप पर सबमिट करेंगे। आज शाम को 8 बजे से पहले जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है रेस का, वो कंप्लीट करके सबमिट करें। ठीक है। अभी एक किसी को कुछ डाउट था, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इफेक्टिव आर्यन। mass topic, yes sir. Yes, please wait and others can leave. Thank you all. चलो आर्यन, कहाँ से तुम्हें रिक्वायरमेंट है? So the effective molar mass one, that's all. हाँ, अभी हमने क्या किया, एक वेसल में 2 गैस लिए, ए और बी। तुम्हें वेसल का प्रेशर
वॉल्यूम, टेम्परेचर और टोटल दोनों गैस का मास दिया हुआ है, एंड दे हैव टोल्ड यू व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ ए और बी, या तो फिर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने क्या किया, लेट्स से दैट जो ए और बी है दोनों के मोल्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम कह रहे हैं कि ए के मोल्स x है और बी के 1 माइनस x है। अब हमारे पास मेन फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो उससे तुम P पता है, V पता है, W पता है, R पता है, T पता है, you can find molar mass. So now this molar mass will be ना तो A का रहेगा ना तो B का रहेगा. This molar mass belongs to A and B both, so we call it as effective molar mass. Now total moles का formula mass upon molar mass. So effective mass कैसे निकालोगे? Mass upon total moles. Total moles we have taken as 1 और mass कैसे ढूंढोगे? Moles को molar mass से multiply कर दो, that will give you mass. So total mass is equal to mass of A plus mass of B. Moles A के है x, x into molar mass of A. B के है 1 minus x into molar mass of B divided by 1. That will give you effective molar mass. अभी तुमने effective molar mass ऊपर से ढूंढा हुआ है, तुम्हारे पास A और B का molar mass है, तो तुम्हें मोल्स मिल जाएंगे और जो मोल्स मिलेगा वही तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे देगा, बिकॉज हमने अज्यूम किया है 1 मोल का वैल्यू, हेंस मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन विल बी सेम. नाउ क्लियर? Yes, sir. Sir, also can you show the page after PVR table? थोड़ा जोर से बोलो. सर वो जो हमने PVR टेबल बनाया था ना, उसके बाद वाला थोड़ा सा. पीवीआरटी कहाँ की बात कर रहे हो? PVR टेबल. हाँ हाँ टेबल, ओके ठीक है. हाँ ये इसमें क्या चाहिए? यस सर, बस वो फर्स्ट पार्ट. टेक स्क्रीनशॉट. यस सर, डन. डन. और कोई रिक्वायरमेंट? नो सर, थैंक यू सर. ठीक है, चलो मैं स्टॉप करता हूँ सेशन. थैंक यू ऑल. Thank you, sir. Bye, sir.